सत्संग जी, प्रेम से कहना। जी हाँ। ईस्टर संडे का जिक्र हो रहा है कि किस प्रकार आज ईस्टर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब से यहाँ आना हुआ तो जहाँ भी नज़र जा रही है वहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू होली वीक द टाइमिंग्स of all the establishments are shortened, or due to Holy Week certain services are not available. And the only thought that came to my mind was, may this holiness, this piousness, this love, this divinity, may this not just be restricted to a week or to certain special occasions or to certain special dates, but may this become this piousness, this divinity, this holiness. May our entire lives become holy. And then the virtues that have been spoken about, the values, the teachings that we have been talking about, the message of Lord Christ that the entire world is talking about during this weekend, during these days. May our lives become the very personification of those values, those teachings, those messages. And may our lives come with a disclaimer that due to these holy teachings, you'll only find love. Due to these holy teachings, you'll only find peace. May these words may not remain mere words. Humanity has come too far from its true nature, from its own self. All of us, we need to look in the mirror and see whether we are part of the problem or part of the solution. As one of the models in the exhibition also talks about, we may think that we are not in any capacity contributing to the world order. Our decisions or our thoughts or our behaviors, we may justify them by saying that it doesn't matter because the scope of my behaviors, my decisions is very limited. It is limited to just my family, just the people around me. But the world that I live in, I am the nucleus of that world. The world that I create around myself. Whether it is peaceful, whether it is full of love, whether it is in bliss or not, depends on my own thoughts, my own actions. It is the world that I create for myself I'm responsible for. And the world that I create for myself will definitely have an impact on someone else's world who I'm a part of. And this ripple effect, this snowballing effect, will definitely have an impact on the entire world order as well. But let us not justify our limitations or our deeds or our thoughts by saying that they have a limited impact. We often do that. We may just do something as basic as litter around the road and say, how does it matter? One small contribution here and there will not make the streets clean. If I stop littering around,
how will it ensure that everyone else stops as well? We end up justifying our actions with this argument. But how does it matter if I stop? But the whole point is that it has to begin somewhere. And I can only be responsible for my own actions. And that is the introspection that I need to do, whether I am justifying all the wrong things that I do, all the wrong things that I am aware, and all the things that wouldn't need a lot of effort to change. Very small changes, very small, insignificant changes. They won't take away my free time. They won't disturb the kind of life that I'm living. With very small, mindful changes. And once I do some thinking, some introspection, I'll realize that most of my actions are justified by the same argument, that how does it matter if I change? Let us not keep using that as an excuse and take small steps towards being part of the solution that we all need, we all ask for. जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है तो कभी एहसास नहीं होता कि किसी और चीज की भी जरूरत है। कल हमने वो जो प्रेजेंटेशन देखी कि किस प्रकार ये जो मानव तन है ये कितने कमाल के मैकेनिज्म से चल रहा है, चमत्कार से कम नहीं जिस प्रकार ये मानव तन चल रहा है। We saw the presentation on the anatomy of the human body and you talked about how it is nothing short of a miracle, how it works. पर हम सब ने इस बात का एहसास किया होगा कि अपने शरीर का हमें खुद एहसास नहीं होता जब तक कोई बीमारी ना आए, जब तक पहली बार कहीं छोटा सा दर्द ना उठे, ये पता ही नहीं चलता अच्छा ये भी अंग मेरा हिस्सा था। हम जब चल रहे होते हैं आम तौर पर जिंदगी में अपने शरीर पे का एहसास नहीं होता जब तक कोई कांटा ना चुभ जाए, कोई दर्द ना उठ जाए। देखते हैं कि कहीं यहाँ घुटने में दर्द हो गया तो पता चलता है अच्छा घुटना भी है, जब चलता हूँ तो इसमें दर्द शुरू हो रही है, घुटना भी है। कल तक नहीं पता चल रहा था क्योंकि सब ठीक था। We often even come into the realization of our body when something wrong happens. Otherwise, when everything's going smooth as the presentation was, we don't even come to the realization or experience this very body that we are using, we are living in. But the moment something goes wrong and we realize, yes, there's something off. During COVID, I lost my sense of smell. And up till then, I never really realized that this was also something that I have been blessed with. तो शरीर जैसी स्थूल ये जो सत्ता है इसका एहसास भी नहीं होता जब तक कुछ गलत ना हो इसके साथ। कल देखा कि हार्ट अगर ठीक से ना चले तो हार्ट ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच जाती है, और जब तक सब ठीक चल रहा है हम कोई कारण नहीं ढूंढते कि ठीक क्यों चल रहा है। जैसे ही खराब हुआ तो बात शुरू होती है कारणों की, डायग्नोसिस की, कि ये खराब हुआ तो क्यों हुआ, दर्द हुआ तो क्यों हुआ। ब्लड टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं, कभी पता चलता है कि कोई डेफिशिएंसी है, किसी चीज़ की कमी हो गई है इसलिए ये दर्द हो रहा है, विटामिन डी कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है, तो ये कमी। तो हम कारणों में जाते हैं। कल बात हुई रिदम एंड रीजन। जब तक सब रिदम में है, ये शरीर बढ़िया जैसे चलाया है इस निरंकार ने बनाया है वैसा चल रहा है, तो रीजन की गुंजाइश नहीं आती। रीजन आता ही तब है एक गड़बड़ हुई, शरीर में दर्द उठा तो कारण ढूंढते हैं क्यों उठा, ताकि वो ठीक हो सके।
ब्लड रिपोर्ट्स खराब आई तो कारण ढूंढते हैं, फिर डाइट चेंज होती है, फिर एक्सरसाइज शुरू होती है, कारण। और भक्ति में जब मेरा नाता इस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से इस परमात्मा के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में है, आनंद की अवस्था है, इसके साथ अगर मेरी रिदम बैठ गई है तो मेरे जीवन से सवाल खत्म हो जाते हैं, कारण पूछने मैं बंद कर देता हूं, क्योंकि रिदम का एहसास हो जाता, एकत्व का एहसास हो जाता है। लेकिन जब तक उस अवस्था को मैं प्राप्त नहीं करता तब तक जीवन में कारण रहते हैं, सवाल हम पूछते हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी सवाल पूछ लिए जाएं और उसके जितने भी उत्तर दे दिए जाएं, जब तक इस परमात्मा का एहसास ना हो जाए तब तक वो सारे के सारे जवाब हो सकता है मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दें, हो सकता है थोड़ी दिन के लिए मुझे सहयोग दे दें, पर फिर किसी न किसी रूप में वो खड़े हो जाते हैं। कल सतगुरु माता जी ने कहा कि कैसे कोई कारण जो कल तक मुझे सेटिस्फाई कर रहा था, कोई रीजन जो कल तक मेरे सवाल का जवाब था, इफ आई हैड अ क्वेश्चन and I had an answer to it, maybe that answer was true for me till yesterday, but something might change and that answer may not satisfy me anymore. छोटा बच्चा होता है, कोई सवाल पूछता है कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, तो माँ बाप कोई भी बात बता देते हैं और वो मान जाता है, चल पड़ता है आगे। कारण पूछता है और उस वक्त उसके तर्क में, जितना भी तर्क उसके पास है, जो भी बात उसको कह दी जाती है, अगर तालमेल खा जाए, वो कहता है सूरज क्यों उगता है, रात को कहाँ चला जाता है, तो उसको कहते हैं बेटा रात को सूरज सोने चला जाता है, वो मान जाता है, चलो हम भी सोते हैं, सूरज भी सोता है। पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कारण फिर सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि और चीजें समझ आने लगती हैं, पूछने लगता है। तो भक्ति के विषय में इंसान कारण पूछता है, पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति हृदय भाव का विषय है। और तर्क बहुत मुबारक हैं, क्योंकि जब तक सवाल पूछ पूछ के मैं इस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता कि इसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता सवालों से, क्योंकि बेअंत अगर कह रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, अनहद है जो, असीम है जो, अगर सवालों के उत्तरों में वो बंद हो गया तो फिर वो असीम कहाँ रहेगा। और जब इस अवस्था पर इंसान पहुंचकर अपने सवालों को छोड़ देता है, समर्पित हो जाता है, जो बूंद और सागर वाली बात हमने आज भी जिक्र सुना, तब रीजन खत्म हो जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिदम, क्योंकि इसके साथ एक हो गए। और जब एक हो जाते हैं तो वो सवाल जो मुझे कल तक सहयोग दे रहे थे वो भी बहुत मुबारक हैं, क्योंकि उन सवालों को ठीक से पूछा जाए, उनके उत्तर देखे जाएं। उन सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, मुझे उस अवस्था तक पहुंचाना जहां मैं इन सवालों से थक कर कह दूं कि ये सवाल के जितने भी उत्तर मिल जाएं, ये परमात्मा उनसे बड़ा। एक दार्शनिक की एक बात कहीं पढ़ी थी, वो कहता है कि परमात्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रमाण तो हम उस चीज का देंगे जो मुझसे छोटी है, मुझसे बनाई गई है, जो मेरी बुद्धि में सीमित हो सकती है, क्योंकि बुद्धि भी उससे ही राजी होगी जो बुद्धि को समझ आए, पर परमात्मा बुद्धि के पार का विषय है। तो दार्शनिक कहता है कि सबसे बड़ा प्रमाण ही ये कि कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रमाणों की हम बात करते हैं, ये तो इस माया के प्रमाण में दे सकते हैं। मैटर, द वर्ल्ड दैट वी सी, द फिजिकल वर्ल्ड दैट वी सी, वी एक्सपीरियंस, बट ये उसके भी पार है। इसलिए फिर
आनंद की अवस्था की बात की जाती है, इसी रिदम की बात की जा रही है। इस एक के साथ जब एक हो जाते हैं तो फिर जैसे ये बहे हम वैसे बहते हैं। कारण हम तब ढूंढते हैं जब हम इसके साथ बह नहीं रहे, इसके साथ नहीं चल रहे, जब इसके भाव के खिलाफ चलने का ध्यान है तो जीवन में संघर्ष है, तो जीवन में कारण है। और जैसे जैसे मेरी अवस्था ये बनती है, अब ये जहाँ चलाए मैं वहाँ चल रहा हूँ, तो जीवन में संगीत बनता है, संघर्ष की जगह संगीत बन जाता है। और जब संगीत बन जाता है तो फिर कारण नहीं, कारण तब तक है, सवाल तब तक है जब तक सुर ताल समझ रहा हूँ। और जब पता चल गया कि संगीत बजता कैसे है, संगीत होता क्या है, तो फिर कारण नहीं, फिर आनंद। कहीं किसी को गाते सुनते हैं और आनंद आ रहा है तो हम कारण नहीं पूछते, क्योंकि आनंद का एहसास ले रहे हैं। कारण तब तक पूछा जाता है, अच्छा इसने गाया कैसे, बजाया कैसे, जब तक बुद्धि से उस अनुभव को मैं ले रहा हूं। और भक्ति इस बुद्धि के पार का विषय। जीवन में जब तक सब ठीक चल रहा है, बड़ी आम बात एक है, दुख में इंसान परमात्मा को याद करता है। हर एक इंसान की ये कहानी है। कबीरदास जी ने भी कहा कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्योंकि इंसान का मन इस प्रकार है। जब कुछ बिगड़ता है, जैसे दास ने शुरुआत में कहा, जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक एहसास नहीं होता। शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, शरीर का भी एहसास नहीं होता। जीवन ठीक चल रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि करने वाला मैं हूं, और सब जब तक अच्छा हो रहा है तो कर्ता होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा अहंकार मजबूत हो रहा है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है, मेरे अनुसार चल रहा है। और जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरे अनुसार नहीं है, नुकसान है, और तब मेरा जोर चलना बंद होता है, तो मैं परमात्मा को आवाज देने के लिए भी राजी हो जाता हूं। कल तक जो खुद को नास्तिक कह रहा था, जरूरत पड़ी तो वो भी आस्तिक बनने को तैयार हो जाता है कि काम बनता है तो आज इसको भी पुकार के देख ले। जब तक सही है तब तक कर्ता होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जब तक मैं कर्ता खुद को मान रहा हूं, चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिशें कर रहा हूं, और जब थकता हूं, हारता हूं, तो मैं परमात्मा को आवाज देने को तैयार हो जाता हूं, जैसे ही खराब। और भक्त की अवस्था यह है, भक्ति का प्रमाण यह है, भक्ति का आनंद यह है कि मुझे एक सदगुरु की कृपा से ये बात समझ आ जाती है कि चाहे मेरे अनुसार सब अच्छा चल रहा है या मेरे अनुसार कुछ विपरीत हुआ है, कर्ता मैं दोनों ही अवस्थाओं में नहीं हूं। कर्ता यह परमात्मा है। सिर्फ मेरा खुद को कर्ता मानना मेरी इस अवस्था को खराब करता है या ठीक करता है। मेरी मनोवस्था कैसी चल रही है, उसका एक ही कारण है कि मैं खुद को कर्ता मानता हूं, तो फिर चीजें जो मेरे अनुसार हैं मुझे खुश करती हैं, जो मेरे अनुसार नहीं है वो मुझे विचलित करती हैं, परेशान करती। मैं संघर्ष करता हूं, मैं प्रयास करता हूं चीजें ठीक करने का। और आनंद की अवस्था जीवन में तब आती है जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से मुझे अपनी पहचान हो जाती है, जब ये पता चल जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं। कर्ता खुद को मानना मेरी मूर्खता थी, कर्ता खुद को मानना ही एक कारण था कि मेरी इस परमात्मा से दूरी थी। जैसे ही ये कर्ता भाव खत्म होने लगता है, वैसे वैसे उतना उतना ये निरंकार मेरे जीवन में बसने लगता है, ये परमात्मा मेरे जीवन में बसने लगता है। दुख में इंसान राजी हो जाता है परमात्मा को आवाज देने के लिए, क्योंकि वहां खुद को कर्ता मान रहा है तो हार देखनी पड़ रही है। हार के डर से वहां पर कर्ता को ढूंढने लगता है। और जब तक सब अच्छा चल रहा है तब किसी और को कर्ता मानना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अच्छा चल रहा है और मुझे क्रेडिट ना मिले, मेरी अकल मेरी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो इसलिए इंसान सिर्फ और सिर्फ इस
चक्र में घूमता रहता है। एक घड़ी खुद को कर्ता मानता है, दूसरी घड़ी कर्ता को आवाज देता है, एक घड़ी फिर कर्ता मानता है, फिर आवाज देता है। इसी चक्र में इंसान घूम रहा है। दुख की घड़ी आई तो इसको आवाज देनी शुरू, सुख की घड़ी आई फिर इसे विसार देता है, क्योंकि अवस्था के आधार पर आवाज दी जा रही है। जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है, देखा नहीं है, अभी भी खुद को कर्ता माने हुए है। और उस मौके पर भी खुद को कर्ता मानते हुए परमात्मा को आवाज दी जा रही है कि अब मेरी अकल कह रही है कि परमात्मा को बुला ले, आवाज दे दे। और भक्ति का प्रमाण यही, एक भक्त का प्रमाण यही, जीवन में भक्ति है, इस बात की महक आती ही तब है जब इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है, क्योंकि इस परमात्मा को देख लेता है, इस अविनाशी को देख लेता है, इस कर्ता पुरख को देख लेता है, करने वाला ये निरंकार। और इस निरंकार को जान लेना, इस निरंकार को देख लेना, इस कर्ता को देख लेना और फिर अपनी मैं को इसमें मिटा देना, ये एक भक्ति, ये भक्ति सदगुरु ने बताई। ये भक्ति जो आनंदमय, ये भक्ति जो सत्य से मुझे जोड़ती है, ये भक्ति जो इसके एहसास में मुझे हर पल रखती है, इसी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। और इसीलिए ये मानव तन मिला है और यही आवाज ये युगों युगों से देते आ रहे हैं। तो इस आवाज को हम सुन रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त हमने किया है, या जिस आवाज को सुन रहे हैं और ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक खुद को कर्ता मान के और एक इस कर्ता को जान के। और यही जीवन में फर्क है, एक भक्ति वाले जीवन में और एक जो हम अंधकार में अज्ञानता वाला जीवन जी रहे हैं उसमें। तो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा हर एक मानव के लिए मुमकिन इसलिए ही मानव तन मिला है। और दातार से यही अरदास कि अंधकार से प्रकाश की ओर सबका मुख हो, सबके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर अब सबकी यात्रा पूरी कराएं, सबका जीवन ज्ञान उजाले से रोशन हो सके। प्रेम से कहना, ध्यान रखना।